جو دھرنا کیس ہے، پھر اس کے بعد جو سوسائٹی والا معاملہ آیا، مطلب ہر چیز جنرل فیض حمید ہیں ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ابھی کمیشن بن گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید، آپ کو 2 مہینے بعد ان کا رپورٹ آئے گی کمیشن کی، سپریم کورٹ بھی بظاہر جو کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن بینچ نہیں ہوتا، تو بہرحال وہ امپلیمنٹیشن بینچ کی طرح ہی چلا رہے ہیں اس کو، فیض آباد دھرنے کے نظر ثانی معاملات کو. تو آپ کو کیا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے؟ جنرل فیض حمید کہاں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جنرل فیض جو تھے ایک انسٹرومنٹ تو تھے جو 2017-18 میں جو کچھ جوڈیشل پروسیڈنگ میں مینیپولیٹ ہوتی رہی، چاہے 2018 کا الیکشن رگ ہونا، اور نون لیگ کے بڑے کنسرن تھے، پی ٹی آئی کو بڑی سپورٹ ملی ان کے والے. قاضی فائزہ کے خلاف جو پریزیڈنشیل ریفرنس فائل ہوا، جس طریقے سے چیزیں مینیج ہوئیں، ایون جب ججمنٹ آیا 20 جون 2020 کا، مجھے یاد ہے، جس میں 3 سال سے معاملہ ایف بی آر کو بھی ہم 5 سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا. کچھ لوگ 6-4 سے کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب کے حق میں 6 لوگ ہوں گے. 3 سال سے آگے کہ معاملہ ایف بی آر چلے گا. وہ میں نے ایک پی ٹی آئی کے اس وقت منسٹر تھے، ان سے بات ہوئی. تو میں نے کہا جی یہ کیا ہو گیا، یہ بڑی بات ہے کہ یہ آپ نے ایف بی آر بھجوا دی ہے، یہ تو اب یہ ہے کہ ریفرنس دوبارہ تیار ہوگا. تو انہوں نے کہا جی فیض صاحب نے بڑی محنت کی تھی. اچھا وہ مطلب میں یہ محنت کی، مجھے نہیں پتا کہ نہیں انہوں نے آرگومنٹ میں محنت کی ہے یا کیا، یہ محنت کی تھی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ جو کچھ جو فیض آباد دھرنا یا جو بھی، وہ قاضی صاحب اس سے چیزوں سے نکل نہیں رہے. انہیں اندازہ ہے کہ اس سے جوڈیشری تقسیم ہوئی، ملک میں سیاست میں جس طرح جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی، اور سیاست کی وجہ سے یہ بھی وہ اس چیز کو پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں. چاہے ٹاپ سٹی کی وہ آرڈر دیکھیں، چاہے یہ فیض آباد دھرنا کا دیکھیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جنرل فیض از ان ٹربل، اور ان کی بچاؤ ایک بھی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جو ادارہ ہے مختصر حلقے ہیں وہ اسٹینڈ، وہ ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا. ابھی تک حکومت پی ڈی ایم یہ جو ہے کیئر ٹیکر یا اسٹیبلشمنٹ، قاضی صاحب جو بھی 2 آرڈر کیے ہیں ٹاپ سٹی والا اور یہ، مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ریزسٹنس ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ پورا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں قاضی صاحب جو کریں گے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور کیئر ٹیکر وہ ان کے ساتھ ہوگی. اور مجھے نہیں لگ رہا آج کے دن تک کہ جنرل فیض کی جو وہ ان کی اب نہیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کمیشن ٹاپ سٹی والی جو معاملہ انکوائری میں جاتا ہے، جو منسٹری آف ڈیفینس میں درخواست دیتے ہیں ٹاپ سٹی کے اونر کہ جی مجھے اغوا کیا گیا جنرل فیض، اس کا حل، اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. کیونکہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ سچ صرف بات سچ ہے یا کورٹ مارشل کرانا ہے. کچھ اطلاعات ہیں، کچھ لوگوں کے سینئر لوگ خبریں دے رہے ہیں کہ جی جنرل فیض کو بحال کیا جائے گا، پھر کورٹ مارشل بھی ہوگا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ریڈ لائن ہے اس معاملے میں جوڈیشری کم از کم جو ہے نا، ثاقب نثار، جنرل فیض، ان چیزوں، ان 2 کم از کم ان کو جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مثال، ایک پریسیڈنٹ بنے. ثاقب نثار کا مشکل بنے گا، لیکن دیکھیں اب کیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن بنا ہے، یہ سپریم کورٹ کی مرضی سے بنا ہے، مشاورت سے بنا ہے، کوئی کیا ہے؟ دیکھیں یہ مشاورت تو نہیں ہے، لیکن آبجیکشن نہیں ہے، بلکہ اب سارا پہلے بتایا گیا ہوگا. آپ کا کیا انالیسز ہے؟ پہلے بتایا گیا ہوگا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، اب اس کی خبر نہیں ہے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بہت کمفرٹ ہے، اٹارنی جنرل آفس بہت کمفرٹ ہے. اٹارنی جنرل آفس بہت ان ایزی تھا جب بندیال صاحب تھے. اچھا بندیال صاحب سے ان کو پریشانی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب بڑا ریلیکس وہاں ماحول ہے. ٹھیک. تو یہ مجھے ہے کہ موجودہ حالات میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے قاضی صاحب. اچھا قاضی صاحب نے 9 مئی اور فیض آباد دھرنا ان کو ایکولی مطلب دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا جو فیصلہ تھا یا اس کو امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو 9 مئی جیسے واقعات جو ہے نہ ہوتے، ایونٹ جو ہے وہ نہ ہوتے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب 9 مئی ملٹری انسٹالیشن پہ حملے ہوئے، مطلب وہ ایک میرا خیال ہے ڈیفرنٹ سینیریو اس لحاظ سے کہ ملٹری انسٹالیشن پہ حملے ہوئے، لوگ گرفتار ہیں، لوگ پراسیکیوٹ ہو رہے ہیں. نہیں لیکن پرپز تو وہی تھا، پرپز وہی تھا. اس وجہ سے
उस एंगल से वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एम लेने के लिए प्रोटेस्ट और जलाओ गिराओ जो है, अच्छा अगर यही काम माजी में रहा, अगर ये सदबाब रहता तो 9 महीना होता। अब देखें ये तो पीटीआई भी नहीं मानती, वो कहते हैं हमारे बंदे ही नहीं थे, सेक्शन नहीं थे। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखें तो कारी फाइसा को तनकीद कर रहे हैं कि जी वो उसने क्या उन्होंने लिख दिया 9 मई को। अच्छा। अब देखें बात ये कि यहाँ तो आप माने, देखिए उन्होंने जो लिखा है ना जस्टिस कारी फाइसा ने, वो ये लिखा है कि भाई ये एक जो स्टाइल है कि जी हर 2 महीने बाद लॉन्ग मार्च, ठीक, कि कोई पोलिटिकल एम है कि जी पार्लियामेंट गिराओ जी लॉन्ग मार्च, पार्लियामेंट ये करो जी, ये मुतालबा है जी लॉन्ग मार्च करो। ठीक। ये भी तो देखे ना 10 साल जो साकिब साहब जो पीटीआई का या इमरान खान का जो तर्ज अमल रहा है, वो भी मुल्क के उसने बुनियादें लाई हैं। सीधी बात मैं आपको कि हर 5 महीने बाद जी लॉन्ग मार्च हो रहा है। सबसे पहले आप शुरू करें 2013-12 में वो हुआ कि जी इलेक्शन रेक हो गए, 105 दिन का करना। जब साबित हो गया जी इलेक्शन नहीं रेक हुआ, तो आपने फिर उसके बाद पनामा पे शुरू कर दिया। पनामा पे आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर दिया कि हर चीज मुल्क स्टैंड स्टिल हो। पनामा पे आपने एक वज़ीर आज़म को फारिग किया, हुकूमत आई तो आपको फोकस हुकूमत पे करना था। आपने फिर क्या किया कि अपने मुखालफिन को चुन चुन के किसी को मंशियात में डाला, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सबको आपने अंदर 4 साल इवन एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि यार केड़े बंदे ना हाथ पै गया। पूरी दुनिया, सऊदी अरब, चाइना, सारे जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट ऐसे ही नहीं इमरान से हटी। ये बात भी हकीकत है, पीटीआई को मानना पड़ेगा कि कौन सी वजह है। आप तो हर चीज़ उनकी मान रहे थे, वजह ये थी कि जो इमरान खान साहब का जो तर्ज अमल था वो एस्टैब्लिशमेंट को समझ आई कि इससे मुल्क नहीं चल पाएगा। फिर उन्होंने पीडीएम को लाए। जब पीडीएम लाए तो आपने क्या किया? बिल्कुल, अब इसमें तो कोई शक नहीं है। आप क्या दोस्त मदद मानते ही नहीं है कि हम किसी के देखिए मुल्क में कोई भी पाकिस्तान में कोई काम भी ना साकिब साहब बड़ा काम वो 2 इदारों की मुशावरत हेल्प से नहीं हो सकती। इलेक्शन भी अब कराने थे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन हुई है, तो 8 फरवरी हुई। सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मतलब ये 2 एक सवाल बनता है कि 2018 से 2021 अब दोस्त मजारी की रूलिंग में देखें। अब दोस्त मजारी की रूलिंग जी आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोसेस है, आपने उसको असेंबली डिसॉल्व कर दी, ठीक है। फिर आपने 155 एमएलए घर निकाल लिए, फिर आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दी। वो आज खबर डॉन अखबार में खबर छपी है कि तकरीर भी तैयार हो गई थी, इलेक्शन की तरफ नून लीग जा रही। वो लोगों ने कहा कि जी इस तरह तो नहीं है कि आप धरना दें और कहेंगे जी लॉन्ग मार्च 25 मई की बात, 2022, तो वो खड़े हो गए। फिर आप देखें आपको अल्लाह ने पंजाब हुकूमत दी, केपी दी, जहाँ रहीम यार खान से गाड़ी चलती थी चाइना बॉर्डर तक पीटीआई की हुकूमत, बिल्कुल सिर्फ पीडीएम में भी आपने क्या किया? आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल ये किया कि जी नया आर्मी चीफ ये नवाज शरीफ ला रहा है। आप उस तरह उन चीज़ों में पड़ गए, इंटरनल इंस्टीट्यूशन की चीज़ों में पड़े जब, तो उसका नुकसान ये हुआ कि फिर बाउंस बैक किया इंस्टीट्यूशन। फिर आपने 9 मई किया तो फिर वो मौका आपने दिया, तो फिर देखिए वो हर चीज़ का एंड होता है। आपने उसके पोलिटिकल और 9 मई के चीफ जस्टिस बंदयाल हाथ जोड़ के उधर उन्होंने तरीके से कहा कि जी आप ऐसा करें, मजम्मत करें। आपने कहा जी मुझे, और बाद में जब आप ब्रेक हुई तो मैं अब वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा जो इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा जी ये मुझे ये कहते हैं कि जी मैं मजम्मत करूं, मेरे बंदे अंदर हैं, और ये बात है। तो देखिए सारी बातें इमरान खान साहब अपना जो कंडक्ट है इससे इदारों को अब ये चीज़ आ गई है कि इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। वो इसमें तब्दीली लाएं, ठहराव लाएं सियासतदानों, चाहे वो पॉपुलर है, लेकिन वो सियासत और दुश्मनी इसमें फ़र्क न करें, तब मामला ठीक चलेंगे। लेकिन नून लीग तो अब मजबूरी बनी है एस्टैब्लिशमेंट की। अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि अभी फिर जो 9 मई हुआ और आज 17 नवंबर है और 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो क्या मतलब आपको लगता है कि ये जो अफगान शहरियों की पिटीशन थी, इंसानी हकूक़ की पामालियों की पिटीशन थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं, उसमें एक आप बता दीजिएगा साथ ही कि क्या आपको लगता है कि अब ये सिचुएशन रुकेगी इलेक्शन से पहले, या सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, मतलब पीटीआई ऑलमोस्ट एंड है बज़ाहिर फील्ड में कहीं नहीं है ना, उनको फील्ड दी भी नहीं जा रही। तो क्या आपको लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की पिटीशंस में पहले बात करें कि इन पे ऑब्जेक्शंस लगे हैं, दोनों पिटीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए चीफ जस्टिस काजी फैसला को मौजूदा हालात से कोई कंसर्न नहीं है। 2 महीने से उन्होंने क्या है नहीं वजह ये वो देखें डायरेक्ट अब वो कई
लोग हैं वो कहते हैं जी जब कोई मामला आएगा तो वो करेंगे ना, अब क्या तो मामला आया है ना, ये टेकअप करें, कौन सा ऑब्जेक्शन है उनकी, कौन सा? ये एतजाज हसन साहब की पिटीशन। देखिए एतजाज हसन साहब की पिटीशन पॉलिटिकली सही, लेकिन पॉलिटिकली फील्ड मतलब जो सिनेरियो नजर आ रहा है, तो आपके बुनियादी तौर पर तो जुडिशरी से देखिए वो सारे तो collapse। हाँ ये बात है, हाँ। लेकिन वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैज हमीद को नहीं, वो मौजूदा हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से कोई उनका एक भी ना ऑब्जर्वेशन है ना रिमार्क है ना कोई मैं वही एक्शन कह है। रहा हूं कि वो पहली फैक्ट- दफा का वैसे अच्छी बात है कि इदारे हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन का रोल प्ले, इस वक्त अच्छी बात नहीं है कि सारे एक पेज पे। नहीं, अच्छी बात तो सारे एक पेज पे हैं, लेकिन एक जो फ्रीक है उसको आपने बिल्कुल कौन? पीटीआई मतलब देखिए ठीक है, पीटीआई उनके जो लोग इंस्टॉलेशन मिलिट्री इंस्टॉलेशन PTI मेरा ख्याल है कि सलाह दें, उसमें कोई दो राय नहीं है। PTI जो गलत हुआ वो तो गलत हुआ, बिल्कुल ये बात आपकी हाँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, फिलहाल पीटीआई का आप इस तरह तो नहीं कर सकते। मुझे अगर ना कोई मतलब उनके इवन 50 लाख भी अगर फॉलोअर्स हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी है, जमहूरियत भी है, तो फिर हर चीज को आप जो है वो कुचल देंगे, ये तो जमहूरियत फिर ये भी तो ना हुई। देखिए बात ये है कि वो मेरा ख्याल है कि जो ब्लंडर हुई है ना पीटीआई से, वो पॉपुलैरिटी तो अल्ताफ हुसैन की भी कराची में बड़ी थी, ख़त्म कर दिया गया ना, जैसे मज़ाहिर नकवी ने लाहौर हाई कोर्ट से उनको बैन किया था और वो बैन हो गया। वो जब तक जो कंसर्न है, जो अप्रीहेंशन है मुल्की इदारों की इमरान खान या पीटीआई के हवाले से, वो ख़त्म नहीं होती, तो ये मामला मुझे नहीं लग रहा कि उनको कोई दलील फिलहाल नहीं। अच्छा आखिरी सवाल, अच्छा नून लीग को फायदा ये हुआ, नून लीग को उनका नैरेटिव, वो उनके जो लोग बैठे थे वो हालांकि 2018-19 में नून लीग पे भी टफ टाइम था। मसला क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पीटीआई को सपोर्ट नहीं है, उनकी सपोर्ट है सोशल मीडिया, जो वो लोग जो इम्पैक्ट डाले। अब देखिए सोहेल बड़ाई साहब ने कुछ आर्टिकल लिखे, जी उसका इम्पैक्ट पड़ा है ना कि नहीं? पड़ा है। ऐसे ही लोग जब कोई लिखेंगे उनके हक में, तो वजह क्या है कि उन्होंने साफियों को भी ऑफेंड किया हुआ है, सियासतदानों को भी। आज पीटीआई का वक्त जो है वो किसी छोटी सी जमात के पास चला जाए चाय पीने, सिर्फ फलन अमान के पास गए तो उसका इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट पड़ा कि जी ये हो गया, नून लीग को समझ आएगी ये क्या कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई को अपनी जो तर्ज सियासत है ना वो चेंज करें। पॉपुलैरिटी उनकी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो है, इलेक्शन केपी में हो गया तो वो उनकी बगैर ये लग रहा है कि हुकूमत केपी तो कन्फर्म है, पंजाब में भी अगर उनको टाइम मिले, जो हालात हैं वो इस वक्त यही हैं। नून लीग की पोजीशन बहुत हालात हैं, इलेक्टेबल उनके पास अच्छे हैं, लेकिन जो पॉपुलर सेंटीमेंट होता है वो इमरान खान के साथ अभी फिलहाल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बजाय यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलात में नहीं आ रही। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं आ रही, और 8 फरवरी बहुत दूर नहीं है। डेफिनेटली 8 फरवरी जब गुजर जाएगा, जस्टिस काजी फायजी साहब चले जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर डेफिनेटली इनको भी याद रखा जाएगा। वो किस तरह, वो तो जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो ये था आज का हमारा जुम्मा 8 दिन। आप हमें इस जो है वो प्रोग्राम पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।